Well, right also. So let's start. The first question comes: who called the name of the place Tabera because the fire of the Lord burned the mountain there? Other options. Okay, answers are coming up quickly. Most of you have given right answer, and it's nice to see 11 of you right. Let's see who leads. Rhythm on the front, and Gladwin and Jeremy. So we'll go to the next one. True and false. There are many true and false, but the time is less. So read carefully. Okay. 9 of you gave right answer, and we'll see the scoreboard. Pritham is still on top. Jeremy and Marvin coming up. Suraj and Samuel in the top 5. Third question. Heal her now, O God, I beseech thee. For whom was this prayer offered? It's fairly easy if you've read it or even glanced through it. Okay. Miriam is the right answer. 9 of you were right. Oh, Pritham dropped back to 5. Marvin leading. Jen, Suraj, and Samuel. Top 5. True and false again. There are many true and false, as I said. It's easy and you can give your answers. Wow. 50-50. Let's see the scoreboard. And Marvin is still leading. Suraj, Pritham, Jeremy, Jen. And there are not much difference between the scores. So you can have a tough fight. Let's see the 5th question. If her father had but spit in her face, should she not be ashamed? Who said this to whom? Okay, looks like majority have given right answer. Oh, sorry. Majority were wrong. Only 4 gave right answer. So it's God to Moses. Now it has shuffled. The scoreboard has shuffled. Jeremy is leading, and I think Gladwin is the highest climber for up 4 places. I hope he comes up in top 5. Today we have new names in the podium, so we'll see. True or false? Very good. 12 of you gave right answer. And so we see the scoreboard. Okay, Jeremy leading, Suraj and Pritham again back to the podium, and Olia is on fire because she has 4 correct answers. Okay, 7th question. The earth opened her mouth and swallowed them up, and all the men that upon unto. It's the King James Version language, so if you have read from that, it will be easy. The answers are distributed all the way. Cora is the right answer, and we see the scoreboard. Pritham leading from the front, followed by Jeremy and Marvin, Jen and Suraj. 8th question is a true and false. 10 seconds only.
So give your answers quickly. Okay, it's surprising to see that it was an easy question, but only six could give right answer. Okay, Marvin leading now, followed by Pritham, Jeremy. Let's see the ninth question. Who died and was buried in the desert of Zin while the people abode in Kadesh? Okay, Miriam is the right answer. The answers are scattered all around. Five wrong, total 11 wrong answers. And Marvin is on fire, followed by Samuel and Pritham. Shania is coming up slowly. Let's see if she can retain it. We'll see the 10th question. It's a true and false. 10 seconds will be given. Very good. 11 right answers. And you have background music as well. Okay, Marvin is leading from the front, followed by Samuel and Pritham. Shania coming up. Rahul in the top five. Okay. Moses made a serpent of Dash. Very easy. Put it on a pole. That those bitten by it, by fiery serpents would behold it and live. Good to see majority of you given right answer. Brass is the one. People Moses made a serpent of brass. Anybody looking at it would be safe from the poison. So Mervin is on fire, has a streak of 5 correct answers, followed by Pritham, Samuel, Jeremy, Rahul. Shania has gone below. Let's see. True and false again 10 seconds. So make your fingers touch quickly. Mervin is leading and Pritham and the difference between the score of first two are becoming more and more. So I hope somebody could compete and come. So Rahul, Rajiv, followed by Jen. This is the 13th question. There are still more questions to go till 25, so you have time to come up. Who said to whom? What have I done? So the right answer is as to Balaam because the donkey spoke and Balaam was beating the donkey. Mervin is still on the top and Jen is on fire coming on the second point, followed by Pritham, Rahul and Jeremy. True and false, 10 seconds. Phinehas, the son of Eleazar, had killed Zimri and Cosby. Okay, so true and we're getting more wrong answers in true and false. Anyways, let's go ahead. So Marvin is in the top, leading with a high score, followed by Jen, Pritham, Rahul, and Jeremy. And the answer streak is not broken for Marvin, as it seems 8 right answers.
How many times was census taken in the book of Numbers? Okay. Only two gave right answer. So it was two times the census was taken in the book of Numbers. Mervin is still leading, followed by Jen, Samuel, Pritham, and Rahul. This is the 16th question. Who was Noah? If we had a pro subscription, I would have given double point on this question. Unfortunately, we don't have so. Okay, so it was tricky. Who was Noah? She was the daughter of Zelophehad, and only four gave right answer. The answers are scattered. So Marvin is the highest scorer, followed by Jen, Samuel, Pritham, and Rahul. 17th one, true and false again. So quick, only 10 seconds. Whoa. The results are coming similar, a true and false question. More wrong answers and less right answers. He was 123 when he died. So Marvin leading and followed by Jen, Samuel, Jeremy and Gladwin coming up slowly. And let's see if they can come to the podium. How many cities were given to the Levites? 44, 46, 48, 50. Two right answers. And it is 48. So Marvin, Jen, Samuel, Jeremy, Gladwin. Nothing has shuffled. And this is the 19th question, true and false again. Only 10 seconds given. This time, yeah, the pattern has changed and more right answers. And we see that the scoreboard hasn't changed, but Jen is on fire as he has three streaks of right answers. 20th question, five more to go. Which two tribes requested for the land east of Jordan? It's Reuben and Gad. So only three right answers. And you see the scoreboard. Marvin is still on top, followed by Jen, Samuel, Gladwin coming up. Jeremy is going down. And we'll see if the podium shuffles. Book of the Numbers record the death of Miriam and Aaron. True or false? It's easy one. The right answer is true because already we have given the two questions: Miriam's death and at Zin, and Aaron's death 123, age of 123. And Jeremy has gone down. Shania has come up, and Bubbly is on fire as she has given three right answers back to back. Okay, this is one of the famous statement about Moses. Let's see if we can make it right. Yes, it is in the book of Numbers that we find out that Moses is known as the meekest man on the face of the earth. So good scores, 9 right, 6 false. Mervin on top, followed by Jen, Samuel on third position, and having a streak of 4 answers, followed by Gladwin and Shania. Okay.
Samuel and Jen are having close fight. 23rd. Numbers is the fifth book in the Bible. The answer is already given in the picture. Okay, but still 5 of you could not get the clue. And the scoreboard hasn't changed. There's a tough fight between Jen and Samuel. Let's see who can sustain the podium. So second last question. Numbers has 38 chapters. True or false? Answer is 36. And so Bubbly has come up on top 5. And Shania has gone down. This is the last question. Numbers was written by Moses. True or false? Okay. Of course, it's written by Moses, the first 5 books. And so 9 gave right answers, 4 gave wrong answer. So we'll see who retains the third position. Samuel, 17 out of 25. And then Jen. And first is Mervin. Congratulations, top 3. And we have in the 4th and 5th position Gladys and Jeremy, father and son. Thank you for participating. We hope that it was a tough task to complete the whole book, but hopefully you got some idea, some knowledge about numbers. Okay, God bless you. Thank you. I would like to thank Sunny for conducting the first only mock quiz for numbers. Next Friday will be the real one with George. The quiz master will be conducting. So let's all prepare for it. I know this chapter I was going through, it has so many numbers that you'll get lost in the numbers. But Sunny did not give so much of number thing. That was good, so that we could prepare for the next one. Thank you everyone who participated. And at this time, we'll have a special song by Ghatshila, 9th standard children. Yeah. The song which we are going to sing is a Hindi song. Its title is Maine Kabhi Jana Nahi. Are we audible? Yes, we can hear you. Okay. मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, तो तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, तेरा
thank the 9th standard boys for the lovely special song. At this time, we'll have our testimony time, and whoever wants to give the testimony, you can unmute and you can start, or you can raise your virtual hand. Uh, and we'll start off this testimony by Mr. Sunny. Good evening and happy Sabbath, Saboko. Thank you for this privilege. Today I will be sharing my testimony. So I would like to share big experience in short. Actually, when I was doing my undergraduate, my BSc nursing, that time I was very worldly, very spiritual. I used to, हमारा गर्ल्स कॉलेज था, हमारा गर्ल्स कॉलेज था, तो हम लोग बहुत बदमाशी करते थे. हम लोग सोचते थे क्लास में लड़के नहीं है तो हम लोग को ये लड़का वाला मस्ती भी करना चाहिए, तो हम लोग टीज करते थे, हम लोग कमेंट मारते थे और सब कुछ बहुत नॉटी थे हम लोग. और मतलब मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि तुमको देख के कौन बोलेगा पास्टर की बेटी है, तुम तो मतलब एकदम बहुत नॉटी है, ऐसा टाइप. तो ऐसा था मेरा लाइफ. फिर मैं पुणे गई और फिर मैं वहां काम करने लगी और उस वक्त मेरा रिलेशनशिप भी स्टार्ट हुआ था सनी के साथ. तो फिर धीरे धीरे मेरा लाइफ बदला, मैं बहुत कुछ सीख पाई उससे. और फिर पुणे से 2 साल काम करने बाद मैं लाहौरी गई काम मास्टर्स करने. वहां पे मैं बहुत अकेले पड़ गई थी. बस 3 जन थे हम लोग क्लास में. एक दीदी बहुत बड़ी थी और एक दीदी भी, दोनों मेरे क्लास में दीदी ही थे मेरे लिए. तो मैं बहुत लोनली हो गई थी. मेरे लोनलीनेस के टाइम में मुझे कोई बोला था कि सरमन्स देखा करो यूट्यूब में, ऐसी 1 घंटा सुनेगी तो बहुत कुछ सीखेगी. तो मैं पास्टर डग बैचलर का फर्स्ट टाइम देखी और उनका मैसेजेस से मैं बहुत कुछ सीखी और धीरे धीरे मेरा लाइफ बदलने लगा. आई स्टार्टेड गेटिंग मोर कॉन्शियस अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स और ईश्वर का भय जो है वो मेरे जिंदगी में आया. और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं अपना साल, इतना यूथ मेरा मैं वेस्ट कर दी सेक्युलर एक्टिविटीज, डांस और सब सेक्युलर एक्टिविटीज में जब, और मैं गॉड के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा मैं बहुत रिग्रेट की थी. और तब से मेरे में बहुत इच्छा था कि मुझे कुछ करना है. मेरा बहुत लाइफ वेस्ट हो गया, लेकिन अब और नहीं. अभी जो आगे का लाइफ है मुझे ईश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है, ऐसे एक मैं सोची थी. और फिर जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ, हम चाहते थे कि हम ऐसे जगह काम करें जहाँ सैबथ ऑफ मिले और ईश्वर की कृपा से वो भी मिला. हम रांची आ पाए. मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे मैं यहाँ आऊँ, मतलब नॉर्थ आऊँ इतना दूर, लेकिन तो वो लोग मुझे सब जगह अप्लाई करने बोले, न्यूज़वीड में, लाहौरी में भी और केरला में, जहाँ पे भी हमारा एडवेंटिस्ट कॉलेजेस है. लेकिन हमको कहीं नहीं मिला, सब जगह रिजेक्ट हुई. रांची में ही हमको एक्सेप्ट किए, उनको नीड था तभी. तो बाय गॉड्स ग्रेस हम रांची आ पाए और मेरे मम्मी पापा बिल्कुल खुश नहीं थे. हम जब आ रहे थे तो मेरा घर से वो स्टेशन पार होके रांची आना पड़ता है बैंगलोर से. तो मैं बैंगलोर से सीधा टिकट बुक की रांची के लिए, क्योंकि अगर मैं घर जाती तो वो लोग मुझे नहीं भेजते. तो जब मैं मेरा घर का स्टेशन क्रॉस की, मेरे मम्मी पापा आए और मेरा सामान सब उठा लिए. बोले कि तुम तो इंटरव्यू के लिए जा रही है ना, सामान सब क्यों ले रही है. हम बोले नहीं नहीं, इंटरव्यू हो जाएगा मेरा, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू नहीं होगा, अपना ही इंस्टीट्यूशन है. लेकिन वो लोग मेरा सब सामान ले लिए. मैं एक ही बैग से आई थी रांची, लैपटॉप बैग, उसमें कुछ कपड़े थे और मेरा इंटरव्यू हो गया और मेरे मम्मी पापा, और हो गया मेरा. वो लोग बोले ज्वाइन कर लो 1 नवंबर से, लेकिन मेरे मम्मी पापा बोले नहीं, वापस आओ, ऐसा. और हम बोले हम नहीं आएंगे. और वो जो 2-3 कपड़ा था उसी से मैं 1 महीना चलाई थी. फिर जब मेरा सैलरी आया, धीरे धीरे मतलब सामान सब लिए. तो इट वॉज अ टफ टाइम, लेकिन बहुत अच्छा भी था, क्योंकि इस दौरान बहुत कोई मुझे प्यार दिए, बहुत मतलब मेरे दोस्त के घर सब था, तो वो लोग बहुत ख्याल रखते थे मेरा. और फिर 1 साल काम की, लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन में मैं अकेले पड़ गई थी, लेकिन सनी का सपोर्ट था और इस दौरान हम लोग किंगडम कॉन्शियस लिविंग स्टार्ट कर पाए थे, हमारा मिनिस्ट्री.
और उस वक़्त हम लोग घाटशिला भी आए थे मार्च में। मेरे मम्मी-पापा जैसे चले गए उसी उसी के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था एक्चुअली। तो फिर हम लोग एक चैनल स्टार्ट किए और हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ बना पाए, बहुत आइडियाज़ देते थे गॉड हमको और बहुत कुछ कर पाए हम लोग कुछ मंथ्स में और तब से अभी तक चल रहा है किंगडम कॉन्शियस लिविंग और थ्रू दिस उसके बाद हम जब लॉकडाउन सब खुल गया, हम लोग डिसाइड किए कि अब शादी करना चाहिए क्योंकि हम लोग काफी टाइम से साथ में थे एंड पेरेंट्स का सपोर्ट भी था तो हम लोग ईश्वर के दया से एक डेट सेट कर पाए और शादी हो पाया अच्छे से हुआ सब चीज और फिर अभी बेबी हो गए 1 साल में और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जब से मैं अपना लाइफ परमेश्वर को दी ऐसा नहीं है कि मुसीबत नहीं आया बहुत सारा मुसीबत आया लेकिन मुसीबत जैसे नहीं लगता था एक कॉन्फिडेंस रहता था कि परमेश्वर देख लेंगे कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब अपना लाइफ दे दोगे गॉड को हमेशा खुश रहोगे प्रॉब्लम आएगा और रोना भी आएगा गुस्सा आएगा लेकिन फिर जब बाइबल पढ़ोगे पता चलेगा कि एक क्रिश्चियन का वॉक इजी नहीं है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं लोग हमें बहुत कुछ बोलेंगे कभी कभी फैमिली के अंदर से ही हमें प्रेशर हो सकता है लेकिन अगर हम ईश्वर पे अपना भरोसा बनाए रखे तो तो सब कुछ हो सकता है स्पेशली सारा जब हुई मतलब क्या बोलते हैं हम लोग कंफ्यूज थे कहाँ करना है करके क्योंकि मेटास में बहुत एक्सपेंसिव भी था और फिर स्टेला का शादी भी करना था काफी कंफ्यूज थे हम लोग और ब्यूला चाची से उस वक्त हम लोग मिले तो वो लोग बहुत अच्छा बोले रिम्स के बारे कि यहाँ अच्छा होता है वैसे बिनोय सर बोले थे तो हम रिम्स गए और मेरा डिलीवरी जब हुआ हम थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे 3 मिनट ज्यादा लेंगे Go ahead, no problem. ओके थैंक यू हाँ तो जब हम रिम्स गए शुरू तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि रिम्स तो इतना साफ नहीं रहता है ना जैसे हमारा हॉस्पिटल रहता है फिर हम सोच रहे थे कि मेरे डिलीवरी में किसी को नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा या माँ आएगी या कोई आएगा तो फिर वो लोग बोलेंगे यहाँ मत कराओ तो फिर हम प्रे कर रहे थे कि हमारे डिलीवरी में सिर्फ हम और सनी होना चाहिए कोई नहीं होना चाहिए ऐसे और स्टेला थी हम लोग के साथ हम लोग उसको भेज दिए क्योंकि वो नहीं देख पाती वो सब तो फिर हम गए और रिम्स में प्रॉब्लम ये है कि वुमेन को ही रहना है माँ के साथ मतलब कोई आदमी को नहीं रहना है तो हम अकेले हो गए सनी नहीं था मेरे साथ और हम बहुत डर रहे थे उस वक्त हमको बहुत इच्छा हो रहा था कि कोई रहे मेरे साथ लेकिन मेरे टीचर सब डांट रहे थे कि क्यों रिम्स जा रही है वहां मत जाओ ये तो हम किसको बुलाते हमारे पास कोई नहीं था लेकिन हम लोग बाइबल से एक वर्स पढ़े थे जॉन में उसमें लिखा था कि द सॉरो ऑफ अ मदर इज फॉर अ शॉर्ट टाइम बट द जॉय इज मतलब बहुत जॉय आता है बाद में तो हम बस वो वर्स याद कर रहे थे कि हम अकेले नहीं है गॉड है मेरे साथ और फिर हम ऐसे ही अकेले थे बहुत देर फिर सनी जोस्फिन आंटी को कॉल किया था जोस्फिन बोद्रा करके एक आंटी है वो कैंपस में नहीं रहती है वो बाहर रहती है तो आंटी वैसे नहीं सोचती है तो आंटी आई तो मेरे डिलीवरी के 3 घंटे पहले आंटी आई थी तो वो 3 घंटा एक्चुअली मुझे सच में किसी का जरूरत था और आंटी सही टाइम पे आई और वो मेरा कंटिन्यूअसली मेरा मसाज कर रही थी बहुत पेन हो रहा था और बहुत अच्छा लगा ऐसा लगा एक एंजल आई है मेरे लिए और फिर सारा हुई और उसके बाद भी हम लोग को रूम नहीं मिला प्राइवेट रूम नहीं मिला तो ब्यूला चाची अपना ऑफिस में ही हम लोग को रखी और उनका ऑफिस में साइड में एक बेड है तो हम सो पाए और सनी रात भर चेयर पे बैठा लेकिन वो प्रे कर रहा था मेरे लिए और वो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और अभी सारा एकदम नॉर्मल है और अच्छे से बड़ी हो रही है और थोड़ा मुश्किल होता था शुरू में फर्स्ट मंथ जब हुआ बहुत डरती थी मैं क्योंकि कुछ नहीं आता था जब मैं हॉस्पिटल में भी काम किया हम बच्चा लोग का वार्ड में नहीं काम करते थे क्योंकि वो लोग का रोना इतना जोर से सुनाई देता था हमको नहीं कर पाते थे लेकिन ईश्वर हम लोग को सब सिखाया और हमको फील होता है कि ईश्वर का दया और कृपा हमारे साथ है और हम बस
सबको यही बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर हम सबके साथ है, स्पेशली जब हम उनको उन पे आधार करते हैं, जब हम अपना भरोसा उन पे रखते हैं। ईश्वर बुरा नहीं है कि हम वो बोलेगा तुम पापी हो मैं नहीं आऊंगा। ईश्वर पापी लोग के लिए ही आया, और शैतान हमें बोलेगा कि तुम बहुत बड़ा पापी हो, ईश्वर तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन ईश्वर हम सबके पास आएगा। खास करके बच्चों को मैं बोलना चाहती हूँ, किसी पे ध्यान मत दो, मतलब भरोसा मत रखो। ये जो मूवी स्टार्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं, आप लोग की उम्र में आप बहुत उनको देखोगे, लेकिन आपका लाइफ में जो हीरो होना चाहिए वो जीसस होना चाहिए। जीसस ही आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, जीसस ही आपको सब टैलेंट्स देता है। आपके पास जो भी है वो ईश्वर की वजह से है। तो मैं अपना लाइफ में महसूस की हूँ कि ईश्वर को अपने जिंदगी देने बाद सब कुछ बुरा भी आता है, तो उसमें हम ओवरकम कर पाते हैं। आप भी अपना लाइफ में ईश्वर पे भरोसा कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उनका नाम लीजिए और उनके पास जाइए, और वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। थैंक यू। लीना को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर गवाही के लिए। यार वो हम लोग को बताए कि किस प्रकार यीशु मसीह अपना बच्चे को कभी मुश्किल हालत में नहीं छोड़ता है, वो हमेशा उनके साथ होता है। अभी हम लोग और भी गवाही सुनेंगे, और अर्जी करता हूँ रिया को अपना गवाही पेश करने के लिए। Good evening and happy Sabbath to all. Well, this evening, I'm not going to give a testimony. It's the Thanksgiving week, so I'm going to give thanks to each and every one. Especially, I'm blessed that after a long time, I'm spending time with my daddy. He's here for almost a month now. He'll be leaving soon. So, I've been blessed to be born in a family. We had a loving family, and thanks to our parents, that especially our dad, that has given us freedom to do each and everything that we do in our life. From choosing our career to where do we want to work, where do we want to stay, what we want to do in life, he has given us the freedom, and that has given us the courage and the confidence that whatever we do in our life, we'll be able to make them proud in some way. And especially, I would also like to thank Movinda and Janal Bhabi, because they have been very much involved in making my foundation. Dada taught me from class 6 till 10th, for which I'm very thankful, because he was our biology teacher, and he's the reason why I scored well in biology and I liked the subject, and that is why I'm a nurse today. And Bhabi taught maths and physics, and as long as she taught, I got good grades later on. It was okay. And whatever I am today, it's all because of the family that I've got, and it is all because of the God's blessing that we have in our life. I would like to say a little thing to all the parents seated over here. Give your children little freedom. I mean, not very much freedom, but according to my experience, our parents, to me and my sister, they never restricted us to do anything. They just give us the freedom, because somewhere or the other, they believed in themselves and in their upbringing, that whatever they have taught us, we will never go astray. And even if we go astray, we will learn from our mistakes and we'll come back to them. And I'm very thankful to Daddy that he has just let me do whatever I want to do, and whatever I am today is all because of him. So
that is all I would like to say. Thank you to everyone. थैंक यू रिया इस सुंदर थैंक्स गिविंग के लिए। डैडी पीछे से पूछने बोल रहे हैं कहाँ पर हो और क्या कर रही हो अभी। और अंकल आप कैसे हैं? बिल्कुल मैं अच्छा हूँ यार। रिया के साथ टाइम, रिया हमको बुलाई और बहुत अच्छा हमको घुमाई भी पूरा, जहाँ नहीं देखे थे कहना चाहिए वहाँ पूरा रुड़की में चर्च किए, रुड़की ले गई थी, फिर मसूरी ले गई, वहाँ 2 दिन थे। उसके बाद फिर कल हम दोनों देहरादून गए। तो इस तरह कहना चाहिए फुल एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय कर रहे हैं रिया के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना साल कहना चाहिए हम भी तरस गए थे कि रिया से कब साथ में रहेंगे। तो अभी साथ रह रहे तो इतना खुशी कि कब महीना गुजर रहा है और कल परसों फिर हमको लौटना है, तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा फिर थैंक अलग यू। अलग होना पड़ेगा उस टाइम पे। चलिए आप लोग से मिलके बहुत खुशी लगा। इतना खुशी लग रहा है कि क्या बोलेंगे, बरसों का खुशी आज मुझको मिल रहा है। Okay, thank you once again, Uncle Sinku and Ria. At this time, I'll give this chance to Bubbly Lakra. She'll be sharing her testimony. Bubbly. Good evening everybody and happy Sabbath. मेरे पास बहुत ही सारे है कहने को, लेकिन मैं एक इंसिडेंट के बारे में बात करूंगी। मेरा टेस्टिमनी जो मुझे लगता है कि लाइफ का ये मेरा सबसे बड़ा टेस्टिमनी है। मैं पढ़ाई कर रही थी, जैसे ही अरबाइन के बच्चे बैठे हुए हैं चर्च में, मैं भी एक दिन वहीं बैठा करती थी। जैसे मैं बड़ी होते गई, हमारा फैमिली बहुत डिफरेंट है। और बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हैं। यूजुअली अपने बच्चों को, स्पेसिफिकली लड़की बच्चे को बाहर भेजते नहीं है पढ़ाई करने। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे गांव से मैं एक पहली लड़की थी जो मुझे बाहर भेजे पढ़ने को। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मेरी पढ़ाई होते ही चली गई, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे पसंद था गाना गाना और कहानियां सुनना। बाइबल की कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी इन कहानियों को। और मैं लंबी थी, लेकिन यूजुअली चर्च का सीट जो था मेरा फर्स्ट और सेकंड सीट हुआ करता था। बहुत कोई बच्चे गुस्सा भी करते थे क्योंकि मैं लंबी थी और उनको दिखाई नहीं देता था आगे। लेकिन मेरी जिद रहती थी आगे ही बैठने का, ताकि मैं अच्छे से सुन सकूं उन कहानियों को। और मैं सुना करती थी बहुत ही ध्यान से। गाना तो जैसे मुझे लगता था कि 3 या 4 बार सुन लूं तो मुझे सब कुछ याद रहता था। उस वक्त घाटशिला में सिर्फ क्लास 7 तक था और मैं 3rd बैच थी घाटशिला से निकलने के लिए, क्योंकि मैं क्लास 7 कंप्लीट कर चुकी थी। और मुझे एक क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ना था। मेरे पिताजी कह रहे थे कि घर से ही पढ़ाई करने को, लेकिन मैं मानी नहीं बात को, क्योंकि वो इन्वायरमेंट जो था वो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया था। मैं इसके अलावा कुछ सोचना नहीं चाहती थी। मतलब मॉर्निंग उठो, वर्शिप करो, कहानियां सुनो, गाना गाओ, इसके अलावा मुझे बाकी और कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो तब मैं घूमती गई
कुंती में क्लास 8 से 12 तक मुझे वहाँ पढ़ाई करना था। जैसे ही मेरा वक़्त आ रहा था अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट करने का, अब तक मैंने परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया था। तो एक्चुअली जब मैं घाटशिला में ही थी, उस वक़्त ही मैं अपने पिताजी से कहा करती थी कि मुझे क्रिश्चियन बनना है और बपतिस्मा लेना है। पर मेरे पिता को ये मंज़ूर बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं उन्हें एक्चुअली समझाने की कोशिश करती थी कि वो जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो होता क्या था, जब भी छुट्टी होती थी, तो डिनर के बाद जब हम सोने को जाते थे, तो मेरे पिताजी अपने बारे में बोलते थे और हमारा जो पूर्वज है, उनके बारे में बोला करते थे और मैं जो थी, मैं उन्हें बाइबल की कहानियाँ सुनाती थी। अम सरना में यूजुअली ऐसा होता है कि वो नेचर वर्शिप करते हैं और कभी भी बाहर से अगर बच्चों के लिए मिठाई लाए जाए, तो वो मिठाई को बच्चों को देने से पहले उसे ज़मीन में तोड़ के रखा जाता है, ये सोच के कि जो मरे हुए हैं, वो उनके नाम का है। कहते हैं कि अगर मिठाई पहले हम खा लें और उनको ना दें, तो हमें पेट में दर्द होगा। पता नहीं ये कितना सच है, मुझे तो कभी हुआ नहीं। लेकिन ऐसा होता था, लेकिन ये बात को लेके मैं फिर पापा से डिबेट करती थी कि जो मिट्टी में रखा गया है वो तो चूहा आके खा जाएगा, बिल्ली आके खा जाएगा और सुबह तो झाड़ू कर दिया जाएगा, तो कौन आके खा रहा है? तो ये कुछ-कुछ बातों से फिर मेरा और पापा का डिबेट हो के लड़ाई हो जाता था और जब सुबह हो जाती थी तो दोनों एक-दूसरे से हम बातें नहीं करते थे। फिर पिताजी तो पिताजी ही होते हैं, फिर लास्टली वो खुद आके बातें करेंगे, फिर से बात शुरू हो जाती थी हमारी। तो ऐसे बहुत वक़्त तक हुआ। लेकिन जब मैं क्लास 11 में थी, तब मेरा वक़्त आ गया था, मुझे लग रहा था कि अगर मैं अभी नहीं करूँगी, तो शायद मैं आगे जाके भटक जाऊँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बैप्टिज़्म ले लूँगी। पापा को मैंने मनाने की कोशिश भी करी, लेकिन मेरे पापा कहे कि अभी नहीं बेटा, जब तुम अपनी पैर पे खड़ी हो जाओगी तब कर लेना, क्योंकि तब कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन मुझे ये बात का मंज़ूर नहीं था, मुझे शायद खुद पे भी भरोसा नहीं था कि अगर मैं अभी बपतिस्मा नहीं लूँ तो शायद मैं कभी भी नहीं ले पाऊँगी। जब मैं बपतिस्मा के लिए रेडी हो रही थी और जब मेरे क्लासमेट्स लोगों को पता चला उस वक़्त कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से नहीं हूँ, तो वो बहुत सरप्राइज़्ड हो गए। वो कहने लगे कि तुम सरना से है, तुम क्रिश्चियन नहीं है? मैंने बोला नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। तो वो बहुत सरप्राइज़ थे क्योंकि उनको लगता था पहले से ही कि मैं सिर्फ़ क्रिश्चियन ही नहीं, मैं एक एडवेंटिस्ट फैमिली से हूँ। तो मुझे कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा ये बात उनका और ये सोच उनका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं अच्छा लाइफ़ जीना शुरू कर ही दी थी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, जब उनको मैंने बोला कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं बपतिस्मा लेना जा रही हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो मेरे जो सबसे करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझे मना किया बपतिस्मा नहीं लेने को, क्योंकि अगर मैं लेती हूँ, तो शायद मेरी आगे आगे की पढ़ाई मेरी बंद हो जाएगी और शायद फाइनेंशियली मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करना बंद कर देंगे। कहीं न कहीं डर तो था मेरे मन में कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन पता नहीं, ये तो मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब परमेश्वर मुझे इतना दूर लेके ही आए हैं, तो शायद यही करना सही रहेगा। और मैं उनका बात नहीं मान के मेरा बपतिस्मा का टाइम हो ही रहा था। शायद 1 घंटा जैसे ही बाकी था, जैसे कि लेसन स्टडी के बाद हमें वक़्त मिलता है बाहर 5 या 10 मिनट लेने के लिए, तो वैसा ही कुछ वक़्त मिला था। और उस वक़्त पता नहीं, ये बेबी दीदी को याद है कि नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि मैं ये बपतिस्मा ले रही थी और वो मेरे पास आई
और वो कही कि बपतिस्मा लेने के बाद लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा और भी कठिनाइयां आने लगती है, और इसके बाद तो टेम्पटेशंस और भी ज्यादा आता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम मिशन को जानो, इंसान के पीछे मत भागो। और मुझे लगता है कि अगर उस दिन या ये बात मेरे दिमाग पे नहीं रहता तो शायद मैं बपतिस्मा लेने के बाद भी सही रास्ता में चलना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। मिशन को जानना, बपतिस्मा के बाद भी कई लोग आपको मिलेंगे जो बहुत करीब होंगे, लेकिन उनका जैसा जीवन रहेगा, जैसा रहना सहना रहेगा, आप बहुत ही ज्यादा दुख हो जाएंगे कि क्या यही क्रिश्चियंस है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को जानेंगे, उनको हम अपना प्रथम स्थान देंगे और उनके वचनों को पढ़ेंगे, तो उसके रास्ता में चलना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे लिए रास्ता खोलते ही जाते हैं और हमें लीड करते जाते हैं, और हमें ना गलत रास्ता को चुनने से हमें बचाते हैं। और वही मेरे साथ होते गया। और उस दिन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा, उस 2 वक्त के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो चीज मेरे दिमाग पे था और अब तक है। और ये एक ऐसा टेस्टिमनी है, मेरा लाइफ का बेस्ट है। परमेश्वर को अपना के मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। और मेरी फाउंडेशन जो है वो सब घाटशिला अरवाइन स्कूल से ही शुरू हुई है, और मुझे यकीन है कि परमेश्वर ने वहां भी मुझे लीड किया था, जिसके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं हमेशा से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और मुझे बताया कि वो है कौन, कितने महान है वो और वो कितने अच्छे हैं। बहुत कोई शायद मेरे जगह आज भी खड़े होंगे जिनको मुश्किल होता होगा, जिनको परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की कहानियां या फिर बैप्टिज्म लेने से दिक्कत लगता होगा, डर लगता होगा कि पता नहीं अगर ये लेंगे तो घर से निकाल दिया जाए। डर मुझे भी था। मेरे 12th के बाद पढ़ाई जब खत्म हुई थी, मुझे ग्रेजुएशन करने में यूजुअली नर्सिंग की जब ग्रेजुएशन होती है उसमें बहुत ही ज्यादा पैसे लगता है, और उस वक्त मैं इतना बड़ा कदम ली थी, बैप्टिज्म ली थी। तो मैं जब बीएससी नर्सिंग कर रही थी, मुझे पैसे हर साल का, मेरा जो फीस था वो 1 लाख अबव था। वो बस फीस था, मेरा कपड़ा खाना वो सब अलग खर्चा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी 4 साल की पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट में 11,000 का क्रेडिट था। मुश्किल था मुझे अपना फीस पे करना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पे करना थे और वो टाइम पे पे करना था। लेकिन अगर परमेश्वर का रास्ता हम चुनते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी खाली नहीं छोड़ते, वो रास्ता दिखाते ही जाते। जितनी भी कठिनाई हो, वो हर कठिनाई को सॉल्व करते जाते हैं, और जब ऐसी कठिनाई आती है तो हमें और भी मजबूत बनाता है। तो जिनको भी अगर शायद मुश्किल हो रहा होगा, अगर वो परमेश्वर को अपनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, आफ्टर मैथ्स क्या होगा, आप परमेश्वर के लिए एक कदम लेके देखिए, परमेश्वर आपके लिए 100 कदम लेते ही रहेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ पब्लिक का। एक बहुत ही इंस्पायरिंग टेस्टिमनी दी। अभी फ्लोर अभी भी खुला है, अगर कोई चाहते तो प्लीज अनम्यूट करिए
और अपना टेस्टिमनी दीजिए। First of all, happy Sabbath to you all, and I would like to say Bubbly's right decision. It's a great adventurous testimony. God bless you, Bubbly, and many more. Many people are here. We are all attending this meeting, Sabbath Vesper meeting, and there are so many things to give testimony about. God is always there at hand. Whenever we are in troubles or unhappy times, God is always with us. This happens with everyone because Satan doesn't let anyone come closer to God. There are situations that we have to take the decision with God's blessings. Whenever we try to take the decision, God is always with us. We have also gone through so many situations, but God has always helped us. If I would like to start from the beginning, as you know, Mr. Hemram, he is my great help, support, and guide. When I was in Jodhpur, we were together. We have worked together, and my life, I was just a bachelor at that time. And I would like to thank Hemram family, Mrs. Hemram, Mr. Hemram, and Janelle and George. They were very small at that time. And it begins with working with him. And I got married with their blessings. They have helped me a lot. I was, as a bachelor, we don't have much. I was alone from my family. I'm the only person in my family who is Christian and Adventist. I have never asked my family, other family members, to accept the Christianity, because I usually for a very less time I used to go home. अक्सर मेरी पढ़ाई भी जैसे बबली की कहानी शुरू होती है, मेरी भी अपने एडवेंटेज स्कूल से शुरू हुई है. मैं इंदौर में था. इंदौर से फिर मैं हापुड़ स्कूल में गया. हापुड़ स्कूल जब बंद हो गया तो पढ़ाई का मुझे भी बड़ा शौक था और मैं चाहता था कि ईश्वर, बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ बच्चे जो गए थे वो वापस आ गए थे. मैं इंदौर से बिलोंग करता था और वो वापस आ गए और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता था, नहीं प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे आगे पढ़ना, आगे बढ़ना है. और ईश्वर ने मेरी दुआ सुनी. जब हापुड़ का बोर्डिंग स्कूल बंद हुआ तो फिर मुझे एक पॉल फैमिली थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना कदम उठाया और उनके साथ मैं जालंधर चला गया. जालंधर में कुछ साल रहा, वहां पर मैंने पढ़ाई की और प्रभु के नजदीक में रहा मैं हमेशा से, और हमेशा प्रभु से दुआ करता था. और इसी तरह से मैं मिशन में रह करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी. और जब जॉब मेरा हुआ था, पहला जॉब मेरा भोपाल में था और भोपाल से मैं ट्रांसफर होकर के जोधपुर आया था और तभी वहां पर मेरी मिस्टर हेमराम से मुलाकात हुई थी. इस तरह से मेरा जर्नी रहा और जर्नी में हमेशा मैंने ईश्वर पे भरोसा किया. लेसन स्टडी और जो भी लेक्चर होता था और जितने भी पास्टर लोग जो भी बातें बताते थे, ये जो अपना एनवायरनमेंट है, एडवेंटिस्ट एनवायरनमेंट स्पेशली, ये बहुत क्लोज रहता है हमको. एवरीडे का जो हमका सबक स्कूल लेसन रहता है वो हमको मदद करता है कि हम प्रभु के नजदीक कैसे रहें. और हर समस्या में परमेश्वर ने मुझे गाइड किया. मेरी शादी वहां से हुई. मिस्टर हेमराम और मिसेस हेमराम ने बहुत बड़ी सपोर्ट की थी और हम काफी साथ रहे. और यही उनका जो स्नेह है, उनका जो प्यार है, हमको अभी तक बांधे हुए हैं कि हम एक दूसरे से मिले और आज हम इस मीटिंग में हैं. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है, मेरी बेटी है. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम अपना खुद का काम शुरू किया. परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन टाइम एंड सिचुएशन बहुत सारी चीजों को बदल देती है. कोरोना की वजह से बहुत सारी सिचुएशंस आई है. आज जहां पर हमने 20-22 साल काम किया, आज वहां पर नहीं है, हम एक दूसरी जगह में, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें देखा है. आज वो स्कूल भी बहुत अच्छे से चल रहा है और ये सब परमेश्वर की योजना होती है. परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता है. हमें उस पर भरोसा रखना है और अब ईमानदारी से उसके वचनों को, उन पे चलना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है और भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमेशा हमें साथ देगा. यही मेरी तरफ से आपको. बैक टू यू. थैंक यू अंकल सागरे फॉर योर टेस्टिमनी. और घड़ी देख रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट है और ये आखिरी टेस्टिमनी मैं देना चाहता हूँ. यहाँ पर हम लोग को जब अगस्त
24 को हम लोग को पता चला कि डैडी को फलकटा में कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया। तो मैं यहाँ से निकल गया, सब दवाई, मास्क, टिपिकेट, पूरी मेडिसिन लिस्ट के साथ मैं चला गया और वहाँ पर था ऑलमोस्ट 3 हफ्ता। और हम लोग डॉक्टर पॉली दादा से संपर्क में थे और हम लोग डेली उसका देखते थे। और हम लोग 3 हफ्ता में सब मम्मी डैडी को हम सोचा यहाँ पर छोड़ना नहीं सकेंगे क्योंकि अभी अकेले हैं। तो हम लोग RT-PCR टेस्ट किया, सब नेगेटिव हुए और हम लोग यहाँ पर घाटशिला सितंबर 13, हम लोग सितंबर शायद 14 को हम लोग यहाँ पर पहुंचे। और हम लोग तब से डैडी मम्मी, हम लोग अगर पीछे में देखेंगे तो दोनों दादी मम्मी बैठे हुए हैं। और अभी जब तक थे यहाँ पर, अभी तक है, मम्मी का यहाँ पर आँख का ऑपरेशन हुआ और 3 हफ्ता पार हो गए कैटरैक्ट का, वो भी अच्छी तरह से देख पा रही है। और अभी ये शायद ये लास्ट वेस्पर्स मीटिंग यहाँ से अटेंड करेंगे संडे को। मैं वापस उनको फलकटा ले जाऊंगा, काफी महीना हो गए, पूरा सितंबर अक्टूबर और एंड नवंबर 2 महीना, 2.5 मंथ्स हो गए यहाँ पर रहते हुए। और दोनों जन बहुत अच्छे तरह से हेल्दी है, दोनों सेट ऑफ मम्मी दादी, घाटशिला के भी और फलकटा के भी। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर दोनों को अच्छी तरह से रखा, सब ऑपरेशन, सब ट्रीटमेंट। और वापस अभी फलकटा हम लोग जाएंगे तो हम लोग को फिर उन लोगों के लिए प्रे करना होगा। वापस सब अभी यहाँ पर ग्रुप में थे, बीर भड़ाका में थे, फिर वहाँ पर अकेले वो दोनों रहने शुरू करने का आदत डालना पड़ेगा। पर यहाँ पर सब कोई अच्छे से थे और अच्छा लग रहा था सब एक दूसरे से रहने के लिए। थैंक यू। आई वांट टू आल्सो शेयर, मैं भी थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। सबको हैप्पी साबत। और जैसे बबली कह रही है, हम सब अरवाइन में बड़े हुए हैं। बबली सबसे लंबी थी तो मैं सबसे छोटा था, ऐसी फर्स्ट लाइन में बैठता था। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का के बारे में और जो फाउंडेशन है, हम सबको हम ये सारा चीज हमने अरवाइन में सीखा है। फाउंडेशन वहां से ले हुआ, बट देन जैसे आगे बढ़ते गए तो बैप्टिज्म मैंने खुर्दा में लिया था व्हेन आई वाज इन 12th। बट आफ्टर बैप्टिज्म जब मैं खुर्दा से बाहर निकला और मैं इंजीनियरिंग में गया, दैट वाज अ रियल चैलेंज फॉर मी। और वो मेरे लिए चैलेंज था बिकॉज जिस स्थिति में मैं बड़ा हुआ हूँ, यूकेजी से अरवाइन में स्टार्ट किया, 12th में एक लाइफस्टाइल है, एक पैटर्न है जो हमने सीखा था, और बाहर में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये मॉर्निंग इवनिंग वर्शिप नहीं होता है, साबत का चर्च नहीं है, और धनबाद में चर्च नहीं है। तो क्या करें? इस वक्त जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि कैसे, जब मैं बैप्टिज्म लिया था, मैं परमेश्वर से बस इतना ही प्रे किया था कि परमेश्वर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप मदद करें। और ये सोच के मैं बैप्टिज्म लिया था। रास्ते मेरे लिए खुल गए थे, बबली जैसे इतना मुश्किल नहीं था। मम्मी मान गई और बहुत कोई मेरे रिलेटिव्स भी खुश थे कि रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से निकल के एक प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन में आ रहे हैं, तो खुश थे बहुत लोग मेरे लिए। मेरे मामी प्रोटेस्टेंट है और ऐसे तो मैं यही प्रार्थना किया था कि परमेश्वर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जब कॉलेज में आया, कोई पूछने वाला नहीं है, चर्च नहीं है, कहीं फेलोशिप नहीं कर सकते, उस वक्त मैं प्रार्थना करता था। तो पहला साल बहुत ही कठिन लगता था। हर साबत जब आता था सोचता था क्या करूँ करके। एंड एक बार मैं अपने दोस्त के साथ था, नवंबर का महीना था, दिसंबर की फर्स्ट वीक का महीना था, और मैं दोस्त के यहाँ था। तो एक सीनियर आया था हमारे रूम में। जब मैं BIT सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ, जहाँ की वो झारखंड का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत फेमस है रैगिंग करने के लिए। और जब एक कोई सीनियर आता है तो वी कैन नॉट सी हिम ऑन हिज फेस, हम उनका फेस नहीं देख सकते, हमें झुक जाना है।
मतलब आंख नीचे करना है और बात करना है, इस तरह का एक उनका रुआब रहता था। वो आया था एंड देन ही स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट क्रिसमस प्रोग्राम। क्रिसमस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहा था मेरे दोस्त के साथ एंड मैं सोचा कि ये सब भी होता है, तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा और मेरे दोस्त ने बोला तुम भी आ जाओ। तो क्रिसमस होने से पहले जैसे हम लोग स्कूल में क्रिसमस प्रोग्राम करते थे, वैसे वहाँ एक छोटा फेलोशिप था जो भी एक क्रिसमस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती। जब मैं वहाँ गया था तो मुझे कई लोग से मिलने का मौका मिला, जो भी कि वे एडवेंटिस्ट नहीं थे, बाहर से थे, लेकिन मुझे उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मुझे कई मेंटर्स मिले लाइफ में, जो लोग सचमुच में जिनके लाइफ में फ्रूट था। और हम परमेश्वर की दया ये हुई कि मैं ये सीखा कि बाइबल कैसे पढ़ते हैं, बाइबल जब पढ़ते हैं तो इसका कैसे मीनिंग निकालते हैं, वरना फिर तो ऐसे ही पढ़ के पार हो जाते हैं। डेली सोने से पहले पढ़ेंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, जस्ट पढ़ देते हैं, लेकिन उसका आंतरिक मीनिंग क्या है, उसका सुंदरता क्या है जब ये बाइबल पढ़ते हैं, तो वो सब मुझे पता चला जब मैं कॉलेज के टाइम में था, जब मुझे कोई ट्रेन करने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था, परंतु परमेश्वर ने ऐसे लोगों को मेरे जीवन में डाला कि मैं सीख पाया। तब मैं जान पाया कि ट्रिनिटी क्या होता है, साल्वेशन क्या होती है, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, इतना सारा चीज सीखने के लिए है। और किस तरह कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं, कैसे बाइबल का मीनिंग निकालते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत करता है, क्या हम रीडिंग से ही सेटिस्फाई हो सकते हैं या फिर कैसे सुंदर तरीके से एक ऑथर ने किस तरह से लिखा है उसको सुंदर तरीके से पढ़े, ये सब सीखने को मौका मिला। परमेश्वर की दया ये भी कि बहुत कई साल तक मैं उनके साथ रहा और मुझे भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, जिसके कारण मैं भी स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कर पाया। बहुत लोगों को बाइबल स्टडी में बुलाता था, हम लोग साथ में स्टडी करते थे एंड इस एक वर्स जो मेरे लाइफ में जो एक इम्पैक्ट छोड़ गया था वो था मार्क 12:30। मार्क 12:30 में यीशु मसीह ऐसे कहता है कि लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड एंड विथ ऑल योर माइट, with all your strength. And the word all is repeated so many times in that verse that it left an impact for my life. मैं सोचता था कि जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट सेकेंड ईयर में, लोग हमारे कॉलेज में अलग अलग सोसाइटीज भी थे, छोटी छोटी सोसाइटीज, जो कि अलग स्टूडेंट्स को टैलेंट के बेस पे इंडक्ट करते थे। मैं गाने में, गिटार बजाने में जानता था, तो मुझे आर्ट सोसाइटी में ले लिया, परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी में। तो मैं स्टेज में गाना गाता था और कॉन्सर्ट्स होते थे हमारे। लेकिन वो परमेश्वर ने जब मुझसे बातचीत की उस वर्स से, मार्क 12:30, लव योर लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। मैं सोचा कि परमेश्वर, मैं तो अपना पूरा नहीं दे रहा हूँ। एक तरफ मेरा ऐसा जीवन है जहाँ मैं लोगों के सामने फिल्मी गाना गा रहा हूँ, एक तरफ मैं एक चर्च का जीवन भी बिता रहा हूँ। तो वो वर्स से मुझे स्ट्रेंथ मिला था कि मैं जितनी हो सके कोशिश करूं कि परमेश्वर को अपना सब कुछ दो। आज भी सब कुछ तो नहीं दे पाता हूँ, कुछ कुछ रह जाता है, परंतु इंटेंट यही रहता है कि परमेश्वर, मैं जो भी करूं, आप बाइबल को नजर रखते हुए मैं अपने लाइफ का डिसीजन लूं। पूरा कभी भी नहीं दे सकता क्योंकि पापी इंसान है, परंतु कोशिश रहती है। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा इंटेंट ये हो कि हम उस बुराई वाले जीवन में व्यतीत ना करें। और ऐसे ही जब मैंने वो डिसीजन लिया और हमारे क्लब में या सोसाइटी में एक कमेटी रहती है, उनके सामने डाला, कठिन था मुझे एक्सप्रेस करने के लिए। वो लोग भी समझ नहीं रहे थे कि क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट डज ही मीन बाय गॉस्पेल सॉन्ग, कि ये सब गाना नहीं गाएगा और परमेश्वर के बारे गाना गाएगा। नहीं समझ में आ रहा था उनको, परंतु मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझसे कैसे बातचीत की है। और ऐसी वो एक इम्पॉर्टेंट फेज था। फिर कॉलेज खत्म होने बाद मेरी माँ चाहती थी कि मैं काम करूं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आगे मास्टर्स करूं, और वो भी एक कठिन फेज था जब, क्योंकि पापा नहीं है तो फाइनेंशियल क्राइसिस था। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाया और आईआईटी में रूरकी गया था मास्टर्स करने के लिए। उसके बीच में मुझे काम करना पड़ा 3 महीना, जब तक मैं कुछ पैसे जमा कर पाए और
और उस दौरान में मैं मम्मी से शेयर करता था कि कैसा एक्सपीरियंस है। और उस 3 महीने में मम्मी जान गई थी कि मुझे फ्यूचर स्टडी करना है, परमेश्वर ने उनको भी मना लिया था। ऐसे परमेश्वर काम करता है। परंतु एडमिशन के लिए भी बड़ा अमाउंट है जो मिलना मुश्किल था। मैं नहीं चाहता था किसी को पूछूँ। अ, बैचलर्स के एडमिशन के समय मम्मी लेटर लेके दीना मैडम के यहाँ गई थी। उन्होंने तुरंत आके हेल्प किया था और एडमिशन में मदद की थी। मास्टर्स के दौरान मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आप यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे भी रास्ता निकालिए। मैं किसी को बोलना नहीं चाहता हूँ। और मेरे बोले बिना ही परमेश्वर ने रास्ता निकाला था। वो अलग कहानी किसी दिन बताऊंगा। और इस प्रकार से मास्टर्स भी खत्म हुई और मैं मास्टर्स खत्म होते साथ मुझे पीएचडी में भी एडमिशन मिल गया। और पीएचडी में ये है कि हम सस्टेन कर सकते हैं, हमें एक स्कॉलरशिप मिलती है। परमेश्वर की दया है कि हम जितना भी मिलता है उससे फैमिली सस्टेन हो जाती है। माँ इस कंडीशन में नहीं कि काम कर पाए, परंतु वो भी खुश है। बहन की शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, बेटी है, सब कुछ सस्टेन्ड है, परमेश्वर की दया है। परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने से जीवन बदलता है। ये मेरी अनुभव है और बहुत लोगों का अनुभव भी है। और मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि कुछ भी क्राइसिस हो लाइफ में, उस वो आपको रोकना नहीं चाहिए परमेश्वर के सामने आने के लिए। और मैं और एक बात मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि बाइबल को पढ़ने और समझने में अपना जीवन में जोर लगाइए। वो क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उसी के द्वारा अपने आप को रिवील किया है। हम उनके विचार को उसी से जानते हैं। तो हमें बाइबल के प्रति एक इम्पोर्टेंट लाइफ में एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मैं एनकरेज करना चाहता हूँ क्योंकि उससे ही लाइफ बदलता है। परमेश्वर कहता है कि माय वर्ड इज अ डबल एज स्वॉर्ड, pierces through the bones and marrows, thoughts and intents of your mind। वो पावरफुल है, हथौड़े के समान है, आग के समान है, जो खराब जिसको जला देगा। वो हनी के समान है, वो लाइट के समान है। जब हमारा जीवन अंधकार है, अंधियारे में है, तो हमें ज्योति दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। तो ये सारा चीज परमेश्वर का वचन बताता है अपने बारे में। जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुंदर अनुभव होगा। परमेश्वर कभी किसी को क्या कहते हैं, नकारता नहीं है। कॉल अपॉन द लॉर्ड एंड बी सेव्ड, ऐसा रोमन्स 9:10 says। एंड ट्रूली इफ यू कॉल अपॉन द लॉर्ड ही लिसन्स टू यू। एंड मैं एनकरेज करना चाहता हूँ बच्चों को और जितने जवान लोग हैं कि परमेश्वर को अपना मूल प्रायोरिटी बनाए और देखे कि परमेश्वर कैसे आपका जीवन बदलता है। थैंक यू। Thank you, Sunny, for that wonderful testimony. अगर कोई आखिरी बार कोई आखिरी टेस्टिमनी छोटा कोई देना चाहता है स्पेशल सॉन्ग से आगे तो कर सकता है। कोई है तो अनम्यूट करके आप लोग टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। आखिरी ईश्वर को धन्यवाद देंगे ये सुंदर समय के लिए कि हम सब जो है एक साथ में हो करके हम लोग सुन सकते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी के, हम लोग एक दूसरे के बारे में जो है हम लोग एक दूसरे के भावनाओं को हम लोग देख सक रहे हैं। हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देंगे। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए और हम लोग जो है साथ में देखे कि हमारे जब मैं भी क्लास 4 के आसपास था, तो क्लास 4 के आसपास था तो मैं जो है स्कूल में, मैं एक हिंदी स्कूल में जब मैं पढ़ा करता था तो 97 में पीके बारला को आप लोग शायद जानते होंगे। और पीके बारला जो है हमारे स्टडी में घर परिवार को जो है खड़ा करने के लिए वह जगह दिए थे। जगह दिए थे मीन्स कहने का मतलब है कि मैं जो है अपने को आज मसीह में शायद पा सकता हूँ। इसलिए मैं इन बातों को ध्यान दे रहा था कि जब हम लोग एक बहुत मोड़ आया था हमारे बीच में 93 में हमारे मम्मी जो है बपतिस्मा ले ली थी। और 93 में जब बपतिस्मा ले ली थी तब जो है माँ लोग जो है बपतिस्मा ले लिए, सारे लोग बपतिस्मा ले लिए। बहुत दिनों के बाद करीब 2004 के आसपास मैं बपतिस्मा लिया, 2003-4 के आसपास। तो सारे लोग परेशान थे कि ये लड़का क्यों बपतिस्मा नहीं ले रहा है, ये क्यों नहीं ले रहा है। और जो है 97 में हमारे बीच जो है एक बहुत बड़ा तकलीफ का घड़ी आया था। पिछली बार जब
फलाकटा वाले उस समय हम लोग जो है बात कर रहे थे इस विषय में, तो कैसा ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था कि हम लोग जो है जब हम लोग 97 में रोजलिन स्वानसी का जो है शादी हो गया था, तब जो है रोजलिन स्वानसी मतलब रॉबिन्सन की मम्मी और फिलिप बटलर के छोटी बेटी का, उस वक्त जो है हम लोग गोवा गए थे उनके घर में, और उस समय जो है हमारे बीच जो है एक नया मोड़ आ गया और मम्मी बपतिस्मा ले ली, पापा भी ले लिए 95 के आसपास में, और जो है सबको बपतिस्मा ले लिए थे, दीदी ले ली थी। हम लोग 3 भाई जो है बच गए थे, और बचने से जो है बाद में भी समीर भाई भी ले लिया और उसके बाद में अब्राहम भी ले लिया, लेकिन मैं बिल्कुल बच गया। और 97 में हमारे पास जो है जब ऐसा तकलीफ आया कि शादी के बाद जब हम लोग घर आए और हम लोग सोचे कि यह घर को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ के एक नया घर बनाएंगे हम लोग। और उस वक्त जो है हम लोग शायद जिन्होंने काम किया था और उस घर को बनाने के लिए जो हम बहुत मशक्कत किए थे, मैं बच्चों से शेयर किया था कि हमारे घर पे खाने के लिए जो है बहुत तंगी था, फिर भी जो है हम लोग मतलब बहुत कष्ट और मुसीबत से जो है हम लोग क्या किए, उस दिन का दिन को पार किए थे। मैं इसको नहीं बताना चाहूँगा अभी। और तो उसके बाद जो है ऐसा 97 में जब ऐसा हुआ तो माँ के हाथ में और मेरी मम्मी और जितने भी हमारे घर के सदस्य थे, हम लोग बहुत जोर से बीमार हो गए थे। हम लोग बहुत डगमगाए हुए थे उस वक्त। हम सोच लिए थे कि ईश्वर शायद नहीं है इस दुनिया में, और सारे लोग हमारे घर के सदस्य जो है हो गए थे। तब जो है यहाँ हम लोग एक 2000 के आसपास में हम लोग अपने चर्च में परिवर्तन लाना चाह रहे थे, और हम लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग गालोडी में सिर्फ हम लोग इतने ही मेंबर्स हैं, तो अब हम लोग धीरे धीरे करके एक बार जो है हम लोग घाटशिला आएंगे चर्च करने के लिए। तो 2000 के आसपास हमारे छोटे भाई जो है अर्बाइन एडवेंटिस्ट स्कूल में जो आज हम लोग सब परिवार काम करते हैं, यहाँ मैं नहीं काम करूँगा सोचा था। और इसी समय एक बार और बिग मैडम बाहर बैठी थी, याद करते हैं हम लोग, लीचू पेड़ के नीचे, जो आज हमारे वहाँ एक बड़ा फ्लड बन गया है। और तो यहाँ की कुछ बातों को जो मैं नहीं बता सक रहा हूँ, और तब जो है वहाँ हम लोग कुछ बातों को सीखे कि छोटे बच्चे लोग ईश्वर को कैसे ग्रहण करते हैं। और मुझे अच्छा से याद है कि बिग मैडम तब जब छोटा था तो हम लोग सुनाया करती थी और बोलती थी बात सुने कि छोटे बच्चों के लिए ईश्वर कैसे खड़ा होता है। तो इन सब बातों को मैं अपने दिमाग में लिया, और जब 95 के बाद 2005 के आसपास मैं फिर बड़ा हुआ, और फिर उस वक्त सर लोग जहाँ आज अनिल मामू लोग रहते हैं वहाँ रहा करते थे, और मैं वहाँ पिक्चर देखने आया करता था संकट टाकीज में, और छुप छुप के, और कभी मैं इधर स्कूल की तरफ नहीं आया करता था। लेकिन एक बार संकोच के बाद जो है अनिल मामू के साथ भी हम लोग आगे पीछे बैठे हैं, और हम लोग पिक्चर देख के निकल भी गए, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। और उस दिन मैं चुपके से आया था घर से, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब चार चलने लगे और इस तरह की कहानियों को सुनने लगा, और तब तक मेरा एग्ज़ाम जो है मैट्रिक मैं लिखा, और तब तक भी मैं अपने आप को ईश्वर में नहीं दिया था। जब माँ बहुत जोर से 97 में बीमार हुई थी, उस समय मैं ठान लिया था कि ईश्वर नहीं होते हैं और नहीं होंगे,
और उसके बाद जो है एक नया मोड़ जब मेरे ज़िंदगी में आया कि मैं एक एक्सीडेंट के द्वारा जो है बचाया गया, और मैं सिमडेगा कोलेबिरा में जा रहा था। उस समय एक मीटिंग, तब भी मैं भागा हुआ था, और कोलेबिरा अचानक मैं किसी को घर में नहीं बताया था उस समय भी। और फिर उस वक्त जो है ईश्वर ने कि पूरी तरह से हमारा वैन जो है एक नदी के खाई में पूरी तरह से गाड़ी जो है आधा 2 पहिया आगे है और 2 पहिया पीछे है, और हम लोग जो है गाड़ी के डोल रहे हैं। ऐसे किसी तरह पीछे का डोर को जो है खोला गया, और मिस्टर लकड़ा जो है जमशेदपुर में काम करते हैं, उनके वैन में हम लोग थे। और उसके बाद में मैं सोच लिया कि शायद आज का ज़िंदगी जो था वह शायद हमको ईश्वर जो है मौका दिया है कि हम लोग क्या करें, जा सके। और मैं उस यूथ कैंप से भाग रहा था। यूथ कैंप गया था। मिस्टर लकड़ा लोग जब खूंटी आए हुए थे, तो मैं यूथ कैंप से जो है भाग करके मैं सिमडेगा जा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद इधर हमको नहीं आना चाहिए। तो जो एक मोड़ मेरे ज़िंदगी में आया, और मैं सोचा कि उस दिन के बाद मैं सोचा कि मुझे जहाँ ईश्वर भेजेगा मैं वहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे जो है काम करने के लिए मैं टोनिया में मुझे भेजा गया। मैं जब काम खोजा सेक्शन में, तो टोनिया भेजा गया, मैं टोनिया नहीं गया। और उसके बाद वहाँ से मैं सोचा कि कई दिन तक, बहुत दिनों तक मैं टिस्को के इर्द गिर्द इधर उधर बाहर में काम किया, टिस्को में काम किया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं ईश्वर के लिए काम करूँगा। फिर महसूस करने लगा कि ये सारी चीज़ों को करने से मेरा कोई फायदा, ईश्वर के करीब हम नहीं हो सकते हैं। सबत के दिन में भी ईश्वर काम करता है। एक दिन मेरी वाइफ जो है इसी तरह से किसी प्रकार से बीएड हो गया, और अभी भी एक स्टोरी है उसमें भी ईश्वर जो है बहुत मदद किया इसमें भी। और सर से मुलाकात हुई। फिर आखिर में जहाँ मैं बोला कि मैं काम नहीं करूँगा, वहाँ फिर मैं किधर से, इधर नहीं उधर से कान पकड़ के ईश्वर मुझे इस स्कूल में फिर से लेके आया। सारे लोग इस स्कूल से जुड़े हुए गवाहियों को दिए, इसलिए मैं भी चाहा कि मैं भी कुछ बातों को आपसे शेयर करूं। ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं हम लोग एक साथ मिल आराधना और स्तुति कर सकते हैं। अच्छा, प्रदीप को धन्यवाद देता हूँ उसका गवाही के लिए। अभी हम लोग क्लोजिंग सॉन्ग, एक स्पेशल सॉन्ग जो कुलविंदर हम लोग के लिए पेश करेगा, बबलू। अच्छा, अभी हम लोग क्लोजिंग प्रेयर होगा प्रदीप टीटे के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये हमारे समर्थी पिता, इस घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर मौका, ये सुंदर दिन और ये सुंदर सबत दिन को तू हमें देखने का मौका दिया कि हम हर नहीं तेरी स्तुति और आराधना में समय व्यतीत कर सकते हैं, और एक दूसरे के बातों को हम साझा कर सकते हैं प्रभु। और दूर दूर जगह से, अन्य अन्य जगह से, हर एक भारत के हर एक कोने से, इस विश्व के अलग अलग जगह से प्रभु तू हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करके कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके तेरी आराधना स्तुति दे सकते हैं। समय अलग अलग है, सोच है अलग अलग है, विचार अलग अलग है हम सबों के, फिर भी तू हमें इस योग्य समझा। हमारे घटी टूटी हर एक बुद्धि और ज्ञान से तू परिपूर्ण करके तू हमें रखा है कि हम तेरी स्तुति और आराधना करने वाले हों। विशेष करके आज हम प्रार्थना करते हैं जिन गीतों को गाया गया उन पर आशीष चाहते हैं प्रभु, उन पर तेरी मदद होने पाए। जिन्होंने वचन और क्विज के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं उनके संग तू था, और आज हम इतने सुंदर सारे लोग अपने बाइबल को पर ध्यान दे करके अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं। इस प्रकार से अपनी महिमा और स्तुति में हम बढ़ सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार और दुख और तकलीफ में है प्रभु उनके संग हो, और जिन्होंने आज अपना टेस्टिमनी शेयर किया उनके ज़िंदगी में काम किए, अपने दाहिने हाथ बढ़ा प्रभु, और हर एक को तूने बढ़ा चला है, बढ़ा के लेके आया है। उन पर जिस प्रकार तूने आगे भी उन्हें आशीषित कर, और उनके परिवार में तेरी आशीष को हम देख सकते हैं। सनी को तेरे हाथ, परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज उनके हाथ में बेबली को तेरे हाथ में है। आज वो लकड़ा परिवार में हो सकती है और तेरे विश्वास में वह बढ़ सकती है। इस प्रकार से प्रभु हर एक को तू अगुवाई किया। हम प्रार्थना करते हैं अशोक सागर भाई के लिए, उनके संग तू था, उन्हें भी तो अगुवाई किया।
हम प्रार्थना करते हैं इस एरवाइन परिवार के लिए, जितने हम सब अलग अलग जगह में जो जुड़ते हैं। रिया अपने एक बड़ा कदम उठाई और अपने आप को इस ईश्वर के लिए सौंप सकती है, और महिमा और तेरे स्तुति में बने हुए हैं, उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भी आज हैं हेम्ब्रोम परिवार से इस स्कूल के द्वारा तेरी महिमा और स्तुति को देखते हैं, साथ ही जितने भी हम सब एक साथ मिलते हैं, इसी रीति से हमारा प्यार तुझ पर आशा और भरोसा करके हम रह सके प्रभु। हमारा मेल मिलाप जुलना तेरे प्रेम के कारण हम जीवित पाए जाते हैं अपने आप को। इसी प्रकार से हम बीज बोते जाते हैं कि जहाँ कहीं भी जितने स्कूल में जुड़े हुए हैं, हमारे इस हॉस्टल में जितने बच्चे रहते हैं, उनके मन हृदय में तू बीज बोया करेगा और इनके द्वारा भी ज्योति चमकने पाएगी। ये आशा के साथ हम रात भर की सुरक्षा आपके हाथ में, और ताकि हम अपने आप को कल फिर से जीवन को करने वाले हो सके। हर एक छोटे बड़े तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। सबों को तो आज का आशीष हमें दिया कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन और ग्रहण कर। आमीन।